जी सर, हम लाइव हैं फेसबुक पे। Are we live now, Ali? Yes sir, you are live. So let's start the webinar, right? Yes sir. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. This is Vijay Kumar. I am convener of the Karachi branch committee of Pakistan Institute of Public Finance Accountant, PIFA. I welcome you to this seminar today, which is titled as Third Amendment Ordinance 2021 in the tax laws. The objective you see of this webinar is to bring about and update our members about the recent changes that have been brought about in the tax laws, Third Amendment Ordinance 2021. Our trainer for today, he does not require any formal introduction. He is a very well-known personality in tax community, in chartered accountancy fraternity and all the professional accountancy forums. We today have with us Mr. Asif Kasbati, who is an FCA, FCMA and LLB. Asif Kasbati Saab is the managing partner of Kasbati and Co. He has been part of the IKIP Fiscal Law Committee. He has also been part of Core Tax Committee, member of BBC. He has got several excellence awards from both ICMAP, ICAP and government. He also plays an active role in KTBA. He has been the former executive director at KTBA. Also, he has served as director at AG Ferguson and Co. And he has also been have worked on the position of group taxation and legal affairs at Getron Group of Companies. So there are plenty of feathers to his cap, which cannot be defined in a few minutes. So a very well-known personality. I hope we all will learn many things today. So over to you, sir, Asif Kasbati Saab. And I also welcome you and thank you on behalf of Karachi Branch Committee to give us time and hold this webinar for members of PIFA. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. We are thankful to Vijay Kumar, the convener of PIFA, and Tayyab, who coordinated this with me, and Hasib and all other organizers who will and is making this program a great success. It is already live on Facebook as well as video channels. And we are hopeful that a lot of people will be enlightened through this process. And the main thing is this, कि ये जो ordinance है, अभी थोड़े अरसे पहले ही आया है और PIFA is the leading the show. कि सबसे पहले PIFA ने ये प्रोग्राम रखा, हमने अपने फ्लोर पे भी रखा, फिर इसके बाद PIFA रख रहा है और इसके बाद ICMA में यही प्रोग्राम होने जा रहा है. लेकिन PIFA is good enough के ये free of charge प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइव कर रहे हैं और सिचुएशन जबकि रेन थ्रेट है इस वक्त मौजूद अपनी जगह, इस वजह से ये ऑनलाइन हो रहा है. आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने इस किस्म का प्रोग्राम किया, जबकि आईसी में जो ये प्रोग्राम कर रहा है वो ओनली फिजिकली कर रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन. अकॉर्डिंगली PIFA इज लीडिंग द शो इन इवन इन अ बेटर वे. मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है and I would love to start this program or my presentation with recitation from Holy Quran. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
जमाने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहे, हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। अगर हमारे अंदर ये चारों खुसूसियात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ये चारों की चारों खुसूसियात नहीं है तो वी हैव टू बी रेडी विद दीज important 4 things to complete our code of life for here as well as hereafter. असल जो मसला है पूरी कहानी का कि ये ऑर्डिनेंस आया क्यों, तो ज़ाहिर है फाइनेंस एक्ट में कुछ कमी रह गई थी और कुछ इश्यूज उसके बाद अराइज हुए। दैट इज द कोर रीजन जिसकी वजह से ये आया। और जो अमेंडमेंट आई थी वो शौकत तरीन साहब के अपनी जो थिंकिंग थी 100% उसके मुताबिक भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल 30 जून को अमेंडमेंट के सिलसिले में या जनरल पोटेंशियल के सिलसिले में शौकत तरीन साहब ने फरमाया था कि देयर आर 15 मिलियन पोटेंशियल इनकम टैक्स पेयर्स। अब ज़ाहिर है इनकम टैक्स पेयर की अगर हम बात करने पे जाते हैं उस सूरत में, तो मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए ये वीडियो क्लिप थोड़ी देर की है, तो इसलिए मैं चलाना चाहूँगा आपके पास। सर कहीं एक दफा स्टॉप करके दोबारा इसको प्ले कर लें। वीडियो ऑन है इसमें से, इसमें वीडियो ऑन है, लेकिन ये वीडियो नहीं चल रही ना। सर काइंडली शेयरिंग दोबारा ऑन कर लीजिएगा। एक्सक्यूज, ये किस तरह से इधर से अब बातें करते हैं जी अरेस्ट वारंट की। ये मैं कह चुका हूं वाइंडिंग अप कि ये मकसद नहीं है कि हम लोगों को अरेस्ट करेंगे। वो सेक्शन 203 को हमने इसमें आप देखेंगे रिफॉर्म कर दिया, रीराइट कर दिया, और हमने ये कहा है कि ये पावर्स एफबीआर के पास नहीं होंगी। ये जो थर्ड पार्टी वगैरह जब जो विलफुल जो है टैक्स डिफॉल्टर है उसका उसके ऊपर, और जो जिसका जो है 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स होगा वो नहीं, अगर इनकम होगी नहीं देगा, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बट कमेटी होगी जो मैं हेड करूंगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें, आपको मालूम है इस वक्त हमारे पास लिस्ट जो है 1.5 करोड़ लोगों की है जिसके पास हमारी पूरी इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास आ गई हैं। हम छोड़ दें उनको? पिछले 72 साल 74 साल तो हमने छोड़ दिया, तो नतीजा क्या हुआ जनाब स्पीकर कि हमारी टैक्स टू जीडीपी वही 10% पे फिर रही है।
10-11 और ये नहीं है कि ये इन 3 सालों में ये पिछले आप देख लें जब से पाकिस्तान बना है इससे आगे गई नहीं है कभी 10-11 मैक्सिमम 12। तो अगर हम टैक्स टू जीडीपी 20% तक नहीं लेके जाएंगे और 6 से 8% तक ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों का कैसे ख्याल रखेंगे। तो जब ये इस साइड पे होते हैं तो और बात हो रही है अब उधर चले गए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब लेकिन अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए तो ये राइट हमारे पास होगा जो मैं एक्सरसाइज करूंगा। वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। जब इससे आगे चले तो इन्होंने जोर दिया है विदहोल्डिंग टैक्स के डेटा को। विदहोल्डिंग टैक्स है वो इस वक्त विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सबमिट करता है और उसके अंदर पार्टी वाइज डिटेल होती है और ज़ाहिर आपके भी इल्म में जब आप विदहोल्डिंग सबमिट कराते हैं तो उसमें CNIC लिखा हुआ होता है या SNIC लिखा हुआ होता है। उसके बेस पे इन्होंने ये डेटा जमा किया है और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइनेंस एक्ट 2021 था उसमें प्रॉपर अमेंडमेंट सही तरह से नहीं आ सकी जिसकी वजह से मसला हुआ। अब अगर मैं आज इस वक्त नंबर्स की बात करूं तो जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो अराउंड 3 मिलियन ओनली हैं, यानी इसका मतलब है कि 12 मिलियन फर्दर हैं जिसको इस एम्बिट में लाना है। लेकिन अगर मैं हकीकी तज्जिया करूं तो इस 15 मिलियन को लाना इन माय हम्बल व्यू क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसी नंबर को एक स्टेप पीछे ले जाऊं कि जब 2018 में या 17 में MNST आई थी उस वक्त इन्होंने कमर्शियल कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं उसका डेटा शेयर किया था पब्लिक से और बताया था उस वक्त के अराउंड 2.1 मिलियन के करीब हैं। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट MNST 2019 में आई या 2020 के करीब में प्रैक्टिकली थोड़ा सा पार्ट था उसमें आई तो उन्होंने ये फिगर जो हमें कोट की या किसी सर्कुलर में जिक्र किया वो अबाउट 2.9 मिलियन हो गया और अब 2.9 मिलियन पे पहुंचे हैं ये। लेकिन इससे पहले मैंने 4 मिलियन की फिगर मीडिया पे कोट की थी जब सिग्निफिकेंट इश्यूज लाइक सैलरीड पर्सन शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन के सिलसिले में ये मसला था। तो मेरी प्रोजेक्शन एट दैट टाइम अबाउट अ ईयर अगो थी वो अराउंड 4 मिलियन थी और आई कैन सी कि अगर 5 मिलियन अगर ये अम्ब्रेला में ले आए इस सारे सिस्टम के तहत तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दी दिस असेंबली एंड दिस गवर्नमेंट कि अगर ये 5 मिलियन तक भी पहुंच गए दो दे आर सेइंग देयर आर 15 मिलियन डिफॉल्टर। दिस इज द कोर बैकग्राउंड फॉर दिस ऑर्डिनेंस के अचानक ये ऑर्डिनेंस कैसे आ गया। और इवन इन वन ऑफ द डिस्कशन के लास्ट ईयर से इस साल के बजट में 24% इंक्रीज है। इनसे पूछा गया कि 24% इंक्रीज किस तरह से आप कवर करेंगे। इन्होंने कहा अबाउट 9.5% इन्फ्लेशन फैक्टर होगा, इसके अलावा ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस हम करेंगे उसका फैक्टर होगा और कुछ बाकी चीजें होंगी, एनफोर्समेंट फैक्टर है उसके जरिए ये 24% कवर करेंगे। अच्छा, कोई आदमी या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई पर्सन अगर ये कह दे कि 24% हम टैक्स में इंक्रीज करेंगे तो हमें ये जहन में रखना होगा कि वो किसकी जेब से जाएगा। वो अवाम की जेब से निकलेगा और ज़ाहिर गवर्नमेंट अम्ब्रेला में जाएगा और उस पैसे को गवर्नमेंट प्रॉपर्ली इस्तेमाल करती है कि नहीं करती, ये एक इशू अपनी जगह पे जरूर होता है हमेशा। लेकिन नेचुरली अगर वो न्यू टैक्स पेयर को ला के ब्रॉडनिंग द टैक्स पेयर कर रही है तो पिफा और उसके मेंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, ना ICAP के मेंबर, ना ICMAP के मेंबर या ना प्रोफेशनल को फर्क पड़ेगा। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर टैक्स फाइलर ड्यू टू द मेनली ड्यू टू द फैक्ट कि सैलरीड पर्सन हम जितने भी लोग हैं वो कम ही लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मेजॉरिटी आर, बल्कि आई वुड से सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी आर एम्प्लॉइज और वो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऑल्दो देयर आर अदर एम्प्लॉइज लाइक इंजीनियर्स, लाइक maybe other professions वाले या इवन लेबर सेक्टर में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अबाउट टैक्सेबल इनकम होगी, जिनकी विदहोल्डिंग भी हो जाती है लेकिन वो रिटर्न नहीं जमा कराते। तो यहाँ आके रिटर्न जमा कराने का सिलसिला और जो टैक्स के लोगों का बिजनेस है वो यहाँ आके बढ़े। दिस बैकग्राउंड अगर मैं आपको मजीद थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट ईयर जो रिटर्न फाइल हुए थे
वो 2.91 मिलियन टोटल रिटर्न फाइल हुए हैं, जो अब 3 मिलियन के करीब पहुंच रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल मैक्सिमम जो है वो 9 मिलियन। बार ने जो जून 30 को डिक्लेयर किया था, या 28 सितंबर को सॉरी डिक्लेयर किया था कि अबाउट 800 सिर्फ रिटर्न आए हैं। और जब अगर हमें 15 मिलियन का टारगेट हो या इवन 4 मिलियन का टारगेट हो रिटर्न्स का, और उसमें अगर सिर्फ 8 लाख लोग रिटर्न जमा करा सके हों सिस्टम डिफॉल्ट की वजह से, सिस्टम इश्यूज की वजह से, और अपनी प्रॉपर टाइमली काम कंप्लीट न करने की वजह से, इसीलिए एक्सटेंशन आई। और हमने प्रीएम्प्ट किया है, और आइंदा के लिए भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मजीद एक्सटेंशन भी आ सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप रिटर्न ना फाइल कराएं। एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न फाइल कराएं, एंड टारगेट योरसेल्फ कि आप अक्टूबर 10 तक ये रिटर्न फाइल करा दें, ताकि आपको अगले स्टेप में मुश्किल नहीं हो। और वरना ये जब सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किया जाएगा, तो वेबसाइट जो है उस पर इतना वजन बर्दाश्त नहीं हो सकेगा कि जब अभी 3 मिलियन पे तो गाड़ी पहुंची भी नहीं है, 1 मिलियन या 1.5 मिलियन तक लोग टच कर रहे होंगे वेबसाइट को, और अभी से इनका सिस्टम क्रैश हो रहा है। तो इसलिए इट विल टेक टाइम। तो इसलिए आपसे तमाम लोगों को सजेशन है कि अक्टूबर 10 तक अपना रिटर्न जरूर फाइल करा दें, जिन्होंने भी नहीं फाइल कराया। अब हम चलते हैं मेजर चेंजेस की तरफ। सो फार एज द इनकम टैक्स इज कंसर्न, इसमें जो मेन एरियाज हैं वो 6 हैं, एंड कुछ और सेकेंडरी एरियाज हैं। उसको मैंने लिस्ट में इस वक्त लिस्ट डाउन नहीं किया, लेकिन इसको मैं कवर कर लूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिजिटल पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन बाय कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर इसके बाद रेमिटेंस थ्रू चैनल अदर देन बैंक्स, और इसके ऊपर रीजन भी है, इसके आगे हम ले जाएंगे इसको कि क्यों लाई गई अमेंडमेंट। फिर इसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूटिलिटीज, और जिसमें SMS वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह शामिल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद रिकॉर्ड शेयरिंग बाय नादरा, फिर पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट, फिर एडवांस टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये 6 मेन एरिया हैं। इसके अलावा 5 स्मॉल एरियाज हैं जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करें सेक्शन 21 की, तो इसके अंदर डिसअलाउंसेस कवर होते हैं। जो अलाउबल एक्सपेंडिचर इन जनरल, अगर मैं बात करूं कि ऑल एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस को काउंटर करने के लिए ये सेक्शन 21 है, जिसमें बहुत सारी सब सेक्शंस हैं। इसके अंदर 21L में जो है वो इस वक्त लिखा हुआ है, एनी पर्सन shall not be allowed if paid through any means other than crossed banking instrument from business bank account of a taxpayer। ये जनरल इस वक्त लिखा हुआ था एनी टैक्स पेयर, लेकिन इसके बाद अब इन्होंने ये किया कि 21L में एनी पर्सन की बजाय इन्होंने एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कर दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए एक नया सबसेक्शन ले आए 21LA। The ordinance introduced another clause whereby the payment for business expense by companies through digital means from business bank account of a taxpayer notified to the commissioner have been made compulsory for the claim of such expenses। जब ये ऑर्डिनेंस आया तो मुझे एक मीडिया पर्सन ने कॉल किया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एरिया। तो मैंने कहा ये नाकाम हो जाएगा लॉ अगर इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी, बिकॉज आई नो द कॉर्पोरेट कल्चर हैविंग बीन इन द इंडस्ट्री एज वेल इन एडिशन टू प्रोफेशन, कि डिजिटल बैंक अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है या इन नॉर्मल लैंग्वेज ऑनलाइन पेमेंट का जो सिलसिला है वो आम हालात में हो ही नहीं सकता। उसकी वजह कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बड़ा होना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब आप पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, एंड दैट आईडी पासवर्ड इज वेरी पावरफुल कि आप जो चाहें अपनी ट्रांजैक्शन विद सर्टेन लिमिटेशंस के आज लिमिटेशन है मिसाल के तौर के ऊपर पर्सनल बैंक अकाउंट की मीज़ान में कि 250,000 से ज़्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इस किस्म की लिमिटेशंस के अलावा भी बात करूं तो मसला आईडी पासवर्ड का है कि कितने लोगों से आईडी पासवर्ड शेयर होगा। मैंने उनको सजेस्ट किया उस मीडिया पर्सन को, जो पार्टली रिपोर्ट भी हुआ न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे दूसरे तरीके से, उसके अंदर जाहिर है स्टेप्स, अगर बीइंग एन अकाउंटेंट आप भी समझते हैं सारे लोग
कि अकाउंट पहले कोई बिल आता है, उसके बाद वाउचर बनता है, उस वाउचर के बाद उस वाउचर के ऊपर 2 नॉर्मली सिग्नेटरी होते हैं अप्रूवल के लिए, फिर उसके बाद चेक बनता है और चेक को 2 सिग्नेटरी साइन करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो पहले 4 स्टेप्स हैं, बल्कि आई वुड से 5 स्टेप्स या इवन 6 स्टेप, वो सारे के सारे तो एज यूजुअल होंगे। अब उसके बाद किसी 1 पर्सन को या 2 पर्सन को ऑथराइज इस एंगल से करना कि डिजिटल बैंकिंग प्रॉपरली हो जाए, या एक डिजिटल बैंकिंग का दूसरा तरीका है कि मिसाल के तौर पर XYZ कंपनी है, उसने डिजिटल पेमेंट का एक प्रोसेस इस तरह से रख लिया कि उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को या मीज़ान बैंक को ऑथराइज कर दिया कि आपका ऑनलाइन सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे और हम अप्रूवल सिस्टम इन डिजिटली उसका अप्रूवल का बटन दबाएंगे तो आपके यहाँ से चेक इशू हो जाएगा। चेक के इशुएंस तक का सिस्टम इस वक्त मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट में नॉर्मली बैंक वाया मीडिया नहीं बनता, चेक की प्रिपरेशन की हद तक वाया मीडिया बनता है। कुछ केस में डिजिटल पेमेंट में ये प्रोसेस आ चुका है कि वो ऑनलाइन हो, लेकिन इंडिविजुअल की हद तक या पार्टनरशिप की हद तक 1 पार्टनर में भी ऑथराइज, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जहां बहुत सारी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, उन ब्रांचेस की पेमेंट का बर्डन और फ्लो। अच्छा, फिर आपके इल्म में होगा कि IRS के सिस्टम में चाइल्ड पासवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लिमिटेड स्कोप पासवर्ड दे दें और बहुत सारे लोगों को अलग अलग किस्म की अथॉरिटी दे दें। तो जब तक ये डिजिटल सिस्टम नहीं आएगा, तो मैंने उस रिपोर्टर को यही कहा कि इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू डू दिस इमीडिएटली। और लकीली मैंने उससे सैटरडे को बात की और संडे को FBR की वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ आ गई कि डिजिटल पेमेंट के सिलसिले में हम नवंबर तक 31 अक्टूबर तक इसको वेव कर रहे हैं सिस्टम को। और उसके बाद इस सिलसिले में सर्कुलर आया, लेकिन सर्कुलर में कुछ लिखा था बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ज़ाहिर है जो एक्सेप्शंस हैं जो पहले भी थी अब भी अवेलेबल हैं कि सिंगल बैंक अकाउंट डज नॉट एक्सीड 250,000, एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल, पोस्टेज और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फाइन्स एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये आइटम वो हैं जो कैश के थ्रू या नॉन डिजिटल मोड के थ्रू अभी भी पेमेंट हो सकती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चेंज। एक और चेंज एम्प्लॉइज को पेमेंट के सिलसिले में, यानी हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं जो सैलरीड पर्सन अगर हैं, तो उनके लिए डिजिटल मोड, ऑनलाइन मोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, बैंक टू बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन डिजिटल मोड नहीं लिखा हुआ था। अब डिबेट अपनी जगह पे है कि डिजिटल मोड का मतलब क्या है। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं तो इसके अंदर ऑनलाइन कोई भी बीच में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन FBR का मकसद जब वो बिजनेस बैंक अकाउंट कहता है तो वो जाहिर है डायरेक्ट 1 पार्टी टू अनदर पार्टी, सामने वाली पार्टी का भी बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड होना चाहिए, वरना इनकम टैक्स में अगर सामने वाली पार्टी के एंगल से बच भी गए तो सेल्स टैक्स में सेक्शन 73 में फंस जाएंगे। वहाँ इनपुट टैक्स के डिसअलाउंस का मसला ऑलरेडी मौजूद है जो बहुत सारे लोगों को इस वक्त शायद न मालूम न हो। फिर इसके बाद हमने ये कोशिश की कि जब पेमेंट का ये डिजिटल का मसला आया तो हमने अपनी कमेंट्री इशू की इस सिलसिले में और इसमें सवाल उठाया कि क्या वाकई डिजिटल पेमेंट की डेफरल 1/11/21 तक वाकई डेफरल है, यानी 31/10 तक वाकई डेफरल है कि नहीं। अगर हम सर्कुलर 21 की सर्कुलर की वर्डिंग देखें जो हमने कोई कमेंट्री के जरिए रिलीज किया, तो ये वर्डिंग है जो यहाँ लिखी हुई है और इसके अंदर आगे जाके इन्होंने लिखा कि कॉर्पोरेट टैक्स पेयर आर अलाउड टू स्विच दिस मोड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2021, यानी 31 तक वो सारे 31 अक्टूबर तक अपने सिस्टम को गेयर अप कर लें, जिसको अब जाहिर है लेस देन अ मंथ बाकी रह गया है। एंड आई सी के इसके अंदर इट्स लाइकलीहुड कि इसमें मजीद एक्सटेंशन होगी, लेकिन अब डिजिटल की एक्सरसाइज बैंक से डिस्कस कर लें, ये सब कुछ कर लें। लेकिन इसके बाद एक जगह पे आके मसला हो रहा है, इसी सर्कुलर में आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सर्कुलर एंड लेटर ऑफ लॉ द लेटर यानी लॉ विल प्रिवेल। दिस इज अ वेरी डैमेजिंग स्टेटमेंट जो इससे पहले मैंने 25-30 साल का तजर्बा है सर्कुलर को देखने का, लेकिन ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी कि किसी सर्कुलर में ये लिखा हुआ हो। ज़ाहिर है एक तरफ से सर्कुलर आपको अक्टूबर 31 तक का टाइम दे रहा है
ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ नवंबर 1 से ये अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंगली ये वो हथियार है जिसको टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको हम अपनी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये स्ट्रिक्ट व्यू लिया जाएगा, इसलिए मसला हो सकता है। लेकिन चूंकि टैक्स अथॉरिटीज आर बाउंड टू फॉलो सर्कुलर, तो इसलिए जो है टैक्सेशन ऑफिसर इतना आसानी से आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने आज से कई सालों पहले ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने का इख्तियार जो है वो कोर्ट के पास है, एफबीआर के पास नहीं है। इसके बावजूद एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर निकले और इसी मजबूरी की वजह से ये लैंग्वेज लिखनी शुरू की गई कि कोर्ट इनको के लिए प्रॉब्लम ना बने। लेकिन जाहिर है नवंबर 30 का जो इशू है, अक्टूबर 31 का या नवंबर 1 का जो इशू है, ये अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वी आर होपफुल कि ये मसला नहीं आएगा, और इसीलिए हम सोच रहे थे कि इस न्यूज़ क्लिपिंग में डालें अपनी, और बिजनेस रिकॉर्डर में हमारी न्यूज़ क्लिपिंग्स आती हैं कई दफ़ा। तो हमने पहले सोचा कि इसकी न्यूज़ क्लिपिंग बना के दें, लेकिन फिर हमने अपना प्लान छोड़ दिया कि किसी ने स्ट्रिक्ट व्यू ले लिया तो मुसीबत है। दूसरा एलिमेंट है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू मसले होते हैं, और 111 यानी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डीम टू बी इनकम, जिसमें 5 मिलियन की लिमिट है कि कोई चाहे तो बाहर से पैसा पाकिस्तान में लाए, और प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर वो ले लेता है बैंक से और चेक के जरिए वो डॉलर विड्रॉ नहीं करता है, बल्कि प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एट एसबीपी ऑफिशियल रेट अगर वो ले लेता है, तो उस सूरत में 5 मिलियन तक पर ईयर एग्जाम्पशन लॉ में मौजूद है कि उसको इम्यूनिटी होगी फ्रॉम एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब ज़ाहिर एक इशू अराइज होगा कि क्या जो मनी चेंजर के थ्रू पैसे आते हैं आपके, या मनी सर्विस ब्यूरो के थ्रू अगर आपके पैसे आते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। तो ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर दिया था जिसके अंदर उन्होंने इन 2 मोड को मना कर दिया कि नहीं, ये 2 मोड उसमें कवर नहीं होते। और उसके बाद उससे कनेक्टेड मसले ये हुए कि एक डिटेल सर्कुलर इस सब्जेक्ट के ऊपर आया ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को काउंटर करने के लिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला बन गया था कि इसलिए कि स्टेट बैंक की रेगुलेशन कुछ और कह रही थी और इसको ट्रीट कर रही थी कि ये बैंकिंग चैनल तस्वर होगा, लेकिन दूसरी तरफ से ये मसला दूसरे तरीके से आया उनसे। तब मैं ये सर्कुलर आपके सामने खोलूं, ये सर्कुलर आया था, और इससे पहले हमने बैकग्राउंड दिया और इसके बाद कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन की सारी, कि जिसके अंदर बताया कि ये मसला हुआ था और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में, और फिर इसके बाद जो है स्टेट बैंक ने एक पोजीशन ली हुई थी और उस पोजीशन को ट्रिब्यूनल ने डिफरेंट तरीके से लिया, कमिश्नर ने डिफरेंट तरीके से लिया, इसलिए कि स्टेट बैंक की रेगुलेशन मौजूद थी, स्टेट बैंक की एक्सप्लेनेशन मौजूद थी, मगर इनकम टैक्स के लिहाज से मसला हो गया था। तो ये बैकग्राउंड था इस पूरी अमेंडमेंट का, जिसमें ये 4 मोड बताए गए थे। अब जाहिर है सर्कुलर के तहत, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि सर्कुलर के तहत कोई फैसिलिटेशन की चीज, कोई एक्सप्लेनेशन आना माने 100% नहीं रखता। इसलिए कि कोर्ट्स ऑफ लॉ ने कहा हुआ है कि एफबीआर कैन नॉट एक्सप्लेन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। इससे मसला था, तो इसलिए अब ये लॉ के अंदर चीज को ले आई है। इसी तरह से ट्राइब्यूनल का ऑर्डर देखें, तो ये ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था जो इसके अंदर आया और सारी चीजें हुई। कुछ मैं सेटिंग कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट ओनली।
अकॉर्डिंगली जो है 114 अकॉर्डिंगली आया कि अगर मैं वापस इस जगह पे जाऊं तो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई मनी सर्विस ब्यूरो के सिलसिले में और एक्सचेंज कंपनीज के सिलसिले में और मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के जरिए। लेकिन इस सिलसिले में भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इन तीनों केस में भी इन सारे केस में भी जो है वो आपको पीआरसी लेना लाजमी है और पीआरसी लेते हुए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और उसको इस्तेमाल करते वक्त भी बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जो सैलरीड पर्सन भी यहाँ हैं या फॉरेन में आपके कॉलीग्स हैं तो वो जब भी पीआरसी की नौबत आए या होम रेमिटेंस आए तो उस सिलसिले में अपने टैक्स एडवाइजर से हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट इन द पास्ट हुई हैं और फिर टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी अमाउंट डिसअलाउ करने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात वो मसाइल रिश्वत की शक्ल में भी हल होने की कोशिश होती है। मूविंग अहेड, अब इन्फोर्समेंट के सिलसिले में चलते हैं। ठीक, इन्फोर्समेंट के सिलसिले में कि अब ज़ाहिर रिटर्न फाइलिंग की इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो जाए, इसलिए उन्होंने ये किया कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 114B के FBI हैज वेस्टेड पावर टू इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर। अच्छा, जनरल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इन द पास्ट कभी भी इनकम टैक्स में नहीं रहा। इनकम टैक्स में सर्कुलर इशू होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी खतरे की घंटी थी कि सर्कुलर को तो एलैबोरेट किया गया था उसके अंदर केस लॉ में, लेकिन जनरल ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया गया और जनरल ऑर्डर का यहाँ पावर मिल गया और उस पावर के तहत इम्प्लीमेंटेशन के लिए FBI को पावर मिल गया। तो एक नई टर्मिनोलॉजी इनकम टैक्स लॉ में पहली दफा आ रही है जनरल ऑर्डर। अब किसके लिए ये आएगा? हु आर नॉट अपीयरिंग इन ATL but are liable to file a return under the provisions of income tax ordinance। इसको enforce करने के लिए FBI also have been given power for discontinuance of mobile phone connection, electricity connection and gas connection। ये तीन कनेक्शन किसी के खत्म हो जाए तो जाहिर है प्रैक्टिकली आजकल की दौर में उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जाहिर है जब आपको याद होगा कि कोविड के सिलसिले में जब सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मोबाइल कनेक्शन खत्म किया जा सकता है या प्रपोज किया NCOC को कि ये खत्म किया जाए ताकि लोग इन्फोर्स हो जाए, तो बहुत सारी जगहों पे रश लग गया वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो ये जो तीन हथियार हैं ये बड़े खतरनाक हथियार हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है और यानी एक दफा इख्तियार हुआ कि ये कर सकते हैं, जब अगर डिसकंटिन्यू हुआ तो फिर इसके बाद रेस्टोरेशन भी होना चाहिए, तो रेस्टोरेशन की भी पावर अकॉर्डिंगली दिए गए। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि जाहिर है कोई भी चीज करने के लिए नोटिस लाजमी है, तो नोटिस पहले दिया जाएगा कि आपके रिकॉर्ड में FBI या नादरा की वजह से ये डेटा आ रहा है, आपने डिक्लेयर किया है कि नहीं किया और आपको एक कंप्लायंस की डेट दी जाएगी। और ये ज़ाहिर है जो करंट टैक्स पेयर नहीं होंगे FBI की राय में उनको दिया जाएगा। इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मुझे या आपको भी आ जाए ओविंग टू द फैक्ट कि मैंने अपने इनकम टैक्स में कोई फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड हमने कोई डिक्लेयर प्रॉपरली नहीं की है या डिक्लेयर की ही नहीं है, तो उस सूरत में ये नोटिस इस अजम्पशन पे आ सकता है कि आप भी रिटर्न जमा कराएं और उस सूरत में एक और पावर भी इस्तेमाल हो सकता है कि रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है लॉ में वो भी ट्रिगर हो। लेकिन इस वक्त यहाँ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से या करंट टैक्स पेयर्स के पर्सपेक्टिव से इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। और जब कंप्लायंस इसलिए है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फॉर एग्जांपल किसी की मदर है, वो रिटर्न अलग से फाइल नहीं करती बल्कि बेटा जो है वही अपनी मदर का बैंक अकाउंट अपने यहाँ डिक्लेयर कर रहा है एज ए बेनिफिशियल ओनर, कि मदर ऑपरेट भी नहीं करती, ना मदर के नाम पे अकाउंट है, मदर की गाइडेंस जरूर होती है, मदर का सजेशन जरूर होता है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर जो है
वो बेटा ही होता है। इसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ की सूरत में भी हो सकता है। बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट इस जगह पे आके एक्सप्लेन करना होगा टैक्सेशन ऑफिसर को कि दो माय मदर हैज नॉट फाइल्ड अ रिटर्न बट आई हैव फाइल्ड अ रिटर्न, आई हैव शोन हर बैंक अकाउंट इन माय रिटर्न एज अ इन द बेनिफिशियल ओनरशिप पार्ट, और उससे रिलेटेड जो इनकम है वो भी अगर उसने डिस्क्लोज की है तो आप काउंटर आर्गुमेंट इस पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जो है नादरा को परमिशन दी गई, एक नया सेक्शन 175B इंट्रोड्यूस किया गया कि नादरा को अलाउ किया गया कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। इन जनरल जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑफिसर, दे आर बाउंड नॉट टू शेयर द इंफॉर्मेशन। यहाँ आके एफबी नादरा को इसीलिए कहा गया, इसलिए कि पब्लिक ऑफिसर के जनरल लॉज में भी हर जगह ये लिखा हुआ है कि they will not share that information to anyone, although practically share हो जाती हैं लेकिन strictly speaking law में मना है। तो इस law में जो restriction लगी हुई है उसको bypass करने के लिए ये section लाया गया है कि जिसमें नादरा को पावर दिया गया है, फिर एफबीआर को पावर दिया गया कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करे। फिर इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इससे पहले कभी भी नहीं था, which is called indicative income concept। उसके ऊपर कैलकुलेशन नादरा या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या दोनों मिलके कैलकुलेशन करेंगे एक इनकम की कि कितनी इनकम है जो टैक्स रिटर्न फाइलर उसूली तौर पर होना चाहिए बट ही डिडंट फाइल द रिटर्न और शी डिडंट फाइल द रिटर्न। तो इंडिकेटिव इनकम का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि उसके तहत उसको नोटिस दिया जाएगा कि ये इंडिकेटिव इनकम आपकी हो रही है और आपने रिटर्न नहीं जमा कराया, तो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि मैंने रिटर्न जमा कराया है, मदर का ऑन बिहाफ ऑफ हर मैंने जमा कराया है या बेनिफिशियल ओनर के तहत जमा कराया है, तो उस सूरत में आप ये रिप्लाई के तहत काउंटर कर रहे होंगे उसको। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपके अतराफ में, विच इज अ फैक्ट जो मैंने टीवी चैनल पे भी कहा कि सैलरीड पर्सन की जो जितना टैक्स देता है उसके पड़ोसी जो ट्रेडर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उमूमी तौर पर उससे ज्यादा टैक्स नहीं देते बल्कि कम टैक्स देते हैं और वो पजेरों वगैरह में घूम रहे होते हैं या बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, जबकि सैलरी पर्सन बेचारा छोटी गाड़ी में घूम रहा होता है। ठीक है, सादगी की वजह से घूम रहा है तो अलग चीज है, लेकिन बाकी मसाइल की वजह से घूम रहा है तो एक अलग चीज है। फिर इस अब ये रिलेशनशिप कायम होगा और एक नई चीज बिल्कुल होगी जिसके तहत जिसके लिए प्रॉपर मुमकिन है इसकी डिटेल के लिए कोई सर्कुलर भी आ सकता है जो अभी तक नहीं है। इंडिकेटिव इनकम के सिलसिले में सारी चीजें हैं कि एफबीआर के पास पावर है कि वो डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी भी वेव कर सकता है और इनडायरेक्टली स्पीकिंग किसी हद तक डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की वेवर देना इनडायरेक्टली पार्टली एमनेस्टी का हिस्सा है। अब इश्यूज के लिहाज से बात करें तो as per certain professional amendment of assessment as per the above procedure and on the basis of the information by NADRA will only be possible if such information is used in the proceeding of audit and amendment of assessment and are not used stand alone to amend the assessment। ठीक है, सेक्शन 122 है जो नोटिस इश्यू करने के लिए, सेक्शन 176 है जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए है। तो यहाँ कुछ प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का सेक्शन इनवोक साथ होगा जब जाके ये प्रोसीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, वरना प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। उन्होंने ये व्यू भी दिया कि अदरवाइज इट मे लीड टू डायरेक्ट लिटिगेशन कि मुझे प्रॉपर सेक्शन में नोटिस नहीं दिया गया, तो ये एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आ सकती है। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट के लिए सेक्शन में अमेंडमेंट की गई है कि बिफोर द ऑर्डिनेंस 0.1% ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, इसको चेंज करके जो पहला पार्ट है वो तो वही रखा गया है और 1000 रुपीज पर डे इन्होंने एडिशनली अकाउंट फॉर किया है, यानी 1000 पर डे वाली एडिशनल मैटर है जो इंक्रीज इन पेनल्टी है। मैक्सिमम 50% ऑफ टैक्स पेएबल लिखा हुआ था प्रीवियसली,
उसको बढ़ा के 200% ऑफ टैक्स पेएबल कर दिया गया, यानी वेरी हैवी इंक्रीज ऑफ 150%, अदर 3 टाइम्स की बजाय 4 टाइम्स कर दिया गया। फिर उसके बाद मिनिमम टैक्स जहां लिखा हुआ था 5,000 उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया, यानी यहाँ पर भी 5,000 इंक्रीज कर दिया गया। और जहां 40,000 इन अदर केसेस था वहां 50,000 या 10,000 बढ़ा दिया गया। ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक एरिया अपनी जगह हैं और सिर्फ नॉन फाइलिंग की वजह से हैं, और डिले इन फाइलिंग और बाकी चीजें अपनी जगह दीगर होंगी। लेकिन अब इसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं, हम इस वक्त सामने पिफा के लोग बैठे हुए हैं, ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होंगे। सैलरी की डिडक्शन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट इनका एरिया हो सकता है, या अपने दीगर एरिया को, दीगर एम्प्लॉइज को जो रेलेवेंट टैक्स के मैटर्स को डील करते हैं, उनको बताना चाहिए कि अगर एम्प्लॉइज बेचारे जिनकी टैक्स ऑलरेडी कट जाता है, लेबर जिनका टैक्स ऑलरेडी कट जाता है, उन्होंने अगर रिटर्न नहीं फाइल करा तो वो भी बेचारे फंस जाएंगे। हालांकि टैक्स पेमेंट पूरी हो चुकी है, सिर्फ मुसीबत है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, टैक्स कट किया, पूरी पेमेंट हो गई, रिटर्न नहीं जमा कराया, फंस गया। इसीलिए जो भी लोग टैक्स के एरिया में हैं या टैक्स के एरिया में नहीं भी हैं, उनको हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि वो टैक्स की ट्रेनिंग लें। मुख्तलिफ इदारे टैक्स की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि अगर फर्ज कर लें जो कि सामने नजर आ रहा है इन द वर्ड्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कि अगर 3 मिलियन टैक्स फाइलर जो इस वक्त हैं वो अगर बढ़ के 15 मिलियन होंगे तो 5 टाइम्स काम बढ़ जाएगा। और 5 टाइम्स काम करने के लिए इतनी बड़ी टीम इस वक्त टैक्स एडवाइजर की मौजूद नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से कई केसेस में कंपनी ये काम करती है, तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग आपको करनी होगी। और उस कैपेसिटी बिल्डिंग में इस बात का खतरा साथ ही साथ होता है कि आप सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं कराएं, करेक्ट रिटर्न फाइल कराना भी बड़ा अहम होता है। इसलिए कि हमने ब्लंडर्स देखें जो 1500, 2000, 3000 में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज के, जो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो हमने ब्लंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं और फिर उनके रिटर्न्स फिर हमने भी जमा कराए हैं। तो एक तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को करने के लिए। और वी हैव सीन सम पीपल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले लोगों का इंक्रीमेंट जो होता है वो 7 to 9% होता है। ऑन दी अदर हैंड जो टैक्स के चैंपियंस होते हैं उनका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज उनको टैक्स सेविंग आइडिया भी आते हैं और पिटफॉल से बचने की भी आइडिया होते हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग हासिल करें। और हमने अपनी टीम को फुल ट्रेनिंग दी है और हमारी टीम जितनी भी इंगेज होती है उसको हम ऑप्शन देते हैं कि वो चाहें तो सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट का कोर्स कर लें। और मेरा सजेशन होगा आप लोगों को भी कि हमारे फेसबुक पेज पे और kasmati.co पे टैक्स की डिटेल, टैक्स कोर्सेज की डिटेल जरूर देखें, वरना इन चीज़ों से बचना आइंदा बहुत मुश्किल हो जाए। फिर इसके अलावा एडवांस टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन 235 है। उस सिलसिले में हुआ है कि एज पर सेक्शन 235 the electricity supply of companies are required to collect advance tax on the amount of electricity of a commercial or industrial or domestic consumer. However, no tax is required to be collected from domestic consumer of electricity if his name appears on the active taxpayer list. इसका मतलब ये कि अगर आप रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहे हैं और आपका जो ओनर ऑफ हाउस है वो एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप फंस रहे होंगे। उसका बिल तो आप देंगे एज पर दी टर्म्स ऑफ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप खामखा ये अमाउंट बियर कर रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली ये अमाउंट चूंकि एडजस्टेबल होती है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये एडजस्टेबिलिटी को भी आपको अपनी कंपनी को प्री इंटीमेट करना होगा ताकि आपकी ज्यादा डिडक्शन ना हो जाए। और इसका भी एक पूरा तरीकाकार है जो हम सैलरी टैक्सेशन में डिटेल में कवर करते हैं इस वक्त। जाहिर है ये मौजूद नहीं है आज का। जाहिर है इसके अंदर न्यू सबसेक्शन हैज बीन एडेड एज 1A, whereby in addition to the tax collectible above, there shall be collected additional advance tax at the given rates below. वो इत्तेफाक से टेबल इसमें स्लिप हो गया है। उसके अंदर इस वक्त 5% का रेट है और उन्होंने बढ़ा के जो नॉन बिजनेस वाले लोग हैं
वो नॉन ATL में नहीं होंगे, उनका रेट भी हायर कर दिया गया है, तो उसके अंदर वो फंसेंगे हायर रेट। इसके अंदर इस कैटेगरी को भी लाने की कोशिश की गई है इस इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से। अकाउंटेंट है, टैक्स पेयर है, डॉक्टर है, डेंटल, और ये सारी लिस्ट है पूरी। और आखिर में जनरल स्टेटमेंट, अदर पर्सन एंगेज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी सारे सर्विस प्रोवाइडर इसके एम्बिट में लाए गए हैं कि FBR का परसेप्शन है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, जिसमें आई वुड से डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं, ऐसे लोग कई हैं जो कि ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, ट्यूटर हैं, ट्रेनर हैं, वो टैक्स नहीं देते, और सारे जो टैक्स देते हैं दे आर ग्रेटफुल कि वो हमारे सबके साथी हैं, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनको फंसाने के लिए ये एरिया लाया गया। इसके लिए भी प्री कंडीशन है कि नॉट अपीयरिंग ऑन ATL, और दूसरी कंडीशन है कि ऑपरेटिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैविंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन फ्रॉम ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग एंटिटीज हैं, ये प्री कंडीशंस हैं इनके लिए। अब सारे इसके अंदर एक चीज अगर मैं पीछे ले जाऊं दोबारा से, कि पुराने लॉ में क्या मौजूद था, ये जो 6.1 है आपके सामने, इसके अंदर है कि हाउएवर नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ हिज नेम अपीयर्स इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक, और अगर वो बिजनेस कर रहा है उसी प्रेमिसेस में और उसका जो बिल है वो कमर्शियल नहीं है बल्कि डोमेस्टिक है, तो वो इसके जरिए बाहर निकल सकता है अगर वो ATL में है तो। और इसके बावजूद यहाँ इनको लाया गया विद प्री कंडीशन ATL के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब सारे अमाउंट बड़ी हो सकती है, रेट ज्यादा हो सकता है, इस चक्कर में वहां आके फंसेंगे लोग। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए एडजस्टेबल होगा, और ये रेट्स हैं जो पिछली जहां पे बिलो लिखा हुआ था उस बिलो की बजाय यहाँ पर आ रहे हैं कि पहले सिर्फ एक जगह पे 5% था, वो बढ़ बढ़ के 5, 10, 15 से लेकर जाके 35 तक रेट जा रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि स्पेशली जो टेनेंट्स हैं उनको ख्याल रखना होगा कि वरना इनका बिल बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। अब इसके अंदर भी एक इशू है प्रैक्टिकली कि इसमें लिखा हुआ है प्रोफेशनल्स वर्किंग फ्रॉम डोमेस्टिक प्रेमिसेस। ये मालूम कैसे चलेगा टैक्स डिपार्टमेंट को? ठीक है, जब तक कि टैक्स डिपार्टमेंट के लोग विजिट ना करें, सर्विस वाले का बोर्ड लिखा हुआ हो कि मैं डॉक्टर फला हूँ, वो घर के बाहर लगाया है और उसके घर में 4 कमरे हैं, उसमें से एक कमरा बाहर से दरवाजा खोला और ऊपर बोर्ड लगा दिया, तब तो ये पता लगेगा टैक्स डिपार्टमेंट वालों को। वरना आम हालात में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल। तरीके बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या गवर्नमेंट इससे पहले एनफोर्समेंट में कामयाब हुई है? या अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं। इसके बावजूद देने वाले ने भी इग्नोर किया इस हदीस को और लेने वाले ने भी इस हदीस मुबारका को इग्नोर किया, हालांकि कैटेगोरिकल हदीस है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं। लेकिन यहाँ आके लोग इस हदीस को इग्नोर कई लोग कर देते हैं, 2 साइडेड मसला होता है, इसीलिए दिस में लीड टू harassment and corruption in our humble view. अब ज़ाहिर जितनी भी अमेंडमेंट आई थी उसके लिए थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि हमने सर्कुलर अपने क्लाइंट्स को भेजा थ्रू दिस TLQC मींस टैक्स एंड लेवीज क्विक कमेंट्री, और ये सीरियल चलती है हमारी और हमारे नॉमिनल चार्जेस हैं। और हमारा ऑलरेडी MOU हो चुका है विद ICAP, ICMA से हमारे MOU शॉर्टली होने की उम्मीद है, और PIFA से भी अरेंजमेंट डिस्काउंट का हो सकता है फॉर आवर कोर्सेज एज वेल एज कमेंट्री।
ये हमने कमेंट्री दी थी, इसके 4-5 एरिया मजीद हैं जो इसके अंदर हमने कवर किए थे इसके जरिए, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो सेक्शन 53 में अमेंडमेंट आई है, एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन। इसमें एक पावर जो है वो लिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि जब कोई भी एग्जम्पशन अलाउ होती है तो उसमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। वो फॉर्मेलिटी के मसाइल थे, तो वो पावर, द न्यू ऑर्डिनेंस प्रोवाइड सच पावर्स शैल बी अवेलेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पावर्स ऑफ द फेडरल बोर्ड। ये लीगल लेकुना रह गया था जिसको इन्होंने सेटअप यहाँ किया है। फिर इसके बाद स्टील सेक्टर के लिए रिड्यूस रेट आया है, और जो पार्टिसिपेंट होंगे वो स्टील सेक्टर से लाइकलीहुड है कि बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो मैंने सिर्फ इशारतन यहाँ रख देता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड हो जाएगी पिफा की वेबसाइट पे भी, और हम लोग भी रिलीज कर देंगे इसके लिंक्स फॉर वीडियो, तो आप मजीद इसको डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम मिनिमम टैक्स एक अच्छी चीज पाकिस्तान में इन जनरल हो रही है, और हमें बजट की थीम में नजर आ रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चूंकि मैं पार्ट हूँ, तो उनकी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। आई वाज अ पार्ट ऑफ मीटिंग एज वेल, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर एज वेल एज SA to PM डॉक्टर वक़ार हसन जो कि अब नहीं है, वो मौजूद थे। इसके अलावा चेयरमैन जो एक्स चेयरमैन हो गए वो भी मौजूद थे, और उनको हमने काफ़ी कोशिश की कि मैन्युफैक्चरर के लिए आपको आप फैसिलिटेट करें, कमर्शियल इंपोर्टर को और लग्जूरियस आइटम को आप डिस्करेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में बहुत सारी ऐसी प्रोविजन आई एंड वी आर थैंकफुल टू देम। इसी तरह की एक चीज़ स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन की है कि मोबाइल फ़ोन को में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का जो है फॉरेन एक्सचेंज यूज़ हो रहा है, ह्यूज इम्पोर्ट्स हैं, तो इसलिए इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन वो मिनिमम टैक्स के एम्बिट में फंस रही थी कि 1.25 जो मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर है उससे इनको इसके जरिए एग्जेम्पशन दी गई है। और ज़ाहिर यू में भी अवेयर के ऑलरेडी कुछ मोबाइल कंपनीज को अप्रूवल भी मिल गई हैं, और दे विल एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान which will be good for PIFA persons as well. इसके बाद मोर्टगेज रीफाइनेंस भी बहुत कम लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो आई जस्ट कवर्ड इट कि यू इस यहाँ पर भी इनको एग्जेम्पशन दी गई है। इसके अलावा खाली सब्स्टिट्यूशन, एक जगह पे एसेट पे लफ्ज में प्रॉब्लम थी तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है, एडवांसेस, लेकिन ये बैंक्स के लिए है सिर्फ। इसके बाद टैक्स क्रेडिट का स्कोप इनहांस किया गया है, विच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, जो भी सैलरीड पर्सन है या इसके अलावा है, कि जितना भी वो डोनेशन देते हैं, सदका देते हैं, ज़कात का अलग सेक्शन है, डोनेशन देते हैं, वो तमाम की तमाम अब एलिजिबल होंगी फॉर टैक्स क्रेडिट। लेकिन वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंस, और जब हम सैलरी टैक्सेशन का और होल्डिंग टैक्स का प्रोग्राम करते हैं, कि बहुत सारे एम्प्लॉइज जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं इसका प्रॉपर क्लेम नहीं करते, तो वी वुड रिकमेंड के रिटर्न्स के प्रोग्राम और सैलरी टैक्सेशन के प्रोग्राम जरूर अटेंड करें टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं आपको जनरल भी बात बताऊं तो आई हैव नेवर पेड द टैक्स एज पर द रेट्स अवेलेबल अंडर द लॉ, ओविंग टू द फैक्ट कि आई ऑलवेज क्लेम जो भी लेजिटिमेट क्लेम available for tax credit regarding investments, regarding zakat, regarding donations, ये सब we try our level best के claim करें। और मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से डिस्कशन हुआ है कि इनके एम्प्लॉइज ये प्रॉपरली क्लेम नहीं करते, और इवन इनके डायरेक्टर्स भी क्लेम नहीं करते, और हमने इन हाउस प्रोग्राम भी किए हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कंपनी की प्रेमिसेस पे जाके। अब आपको अचानक एक तोहफा कह लूं थोड़ी देर के लिए अजीब सा मिला, और इससे पहले अमेंडमेंट लॉज या अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत रेयरली इस्तेमाल हुआ, मगर इन लास्ट 2-3 years फर्स्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, व्हाट डज दैट मीन? और ऑर्डिनेंस के शुरू में ये लिखा हुआ होता है कैटेगोरिकली कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी इसलिए ऑर्डिनेंस निकल गया। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो 1 दिन का वेट कर लेते, 2 दिन का वेट कर लेते, और उसके बाद डिस्कशन होता थ्रेडबेयर, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत स्टेक होल्डर से डिस्कस करना किसी लॉ को लाने के लिए भी जरूरी है, और इट इज ऑल्सो इंश्राइंड इन शरिया कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो स्टेक होल्डर हैं उनसे पूछ लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लॉ आया और इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है, और आपको हैरत होगी कि जिस दिन ये साइन हुआ है उसके अगले दिन भी इसकी ऑथेंटिक कॉपी अवेलेबल नहीं थी। उसके 2 दिन बाद इसकी ऑथेंटिक कॉपी आई है, और इसके ऊपर हमने स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स में भी ये मुश्किल होती है कि वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये भी इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया, और 2 दिन तक आपको पता नहीं था पूरी तरह से। एंड वापस मैं पिफा को मुबारकबाद दूंगा, पिफा को, कि उन्होंने जल्द अज जल्द ये प्रोग्राम किया है ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले। लेकिन दैट रिमाइंड्स अस वन मोर थिंग, कि जिस तरह से अचानक टैक्स लॉ आ जाता है, इसी तरह से अचानक डेथ भी आएगी हमारी, और उस डेथ के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। इसलिए कि यहाँ तो ऑर्डिनेंस आया, अप्लाई नहीं किया तो मॉनेटरी इशू है, टेम्परेरी मॉनेटरी इशू है, टेम्परेरी मॉनेटरी लॉस है जिसको वेव भी किया जा सकता है। मनी खाली पेमेंट है, लेकिन लाइफ गई तो खत्म हुई जिंदगी, जो कुछ है वो यहीं रहेगा। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ के लिए रेडी रहना चाहिए। दिस इज इन ऑल द रिलीजन, बी अ गुड पर्सन, उसके लिहाज से जो इबादतें हैं वो करें। और यहाँ तक आई हैव सीन सम वीडियोज एज वेल कि जिसमें हिंदुइज्म को भी जोड़ा गया है गॉड के पर्सपेक्टिव से, ऑलमाइटी अल्लाह के पर्सपेक्टिव से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सपेक्टिव से। तो जो नॉन मुस्लिम भी हमारे साथ इस वक्त प्रेजेंटेशन में है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि एवरीबडी शुड बी रेडी फॉर दैट। अब हमने इनकम टैक्स की अमेंडमेंट डिस्कस कर ली है। नाउ कम टू द सेल्स टैक्स अमेंडमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टाइम। 1 घंटा तकरीबन हुआ है और ये कवर्ड इनकम टैक्स। जिसमें ज्यादा अमेंडमेंट थी इसमें निस्बतन कम अमेंडमेंट, उसमें अबाउट 10-11 अमेंडमेंट थी। यहाँ पर 7 अमेंडमेंट है जो कि सबको इफेक्ट नहीं करी, कुछ सबको इफेक्ट करेंगी, कुछ कम को इफेक्ट करेंगी। तो इसके अंदर जो एरियाज हैं उसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस के सिलसिले में टैक्स की चीजें आई हैं, जो पार्टली थी पार्टली नहीं थी, वो सब लाई गई हैं। फिर ऑनलाइन मार्केट इंटीग्रेशन के लिए स्कोप में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए कि अगर आपने देखा हो कि फला मार्केट में फला शॉप के ऊपर जो थी उन्होंने पेनल्टी नहीं पे की, इसलिए सील कर दी गई। ये दुकान सील कर दी गई, तारिक रोड की ये दुकान सील कर दी गई, क्लिफ्टन की फला दुकान सील कर दी गई। अब मैं उन दिनों में समर कैंप में था भूरबन में, तो वहां में पता चला कि फैसलाबाद की हो गई मार्केट में फला दुकान सील कर दी गई। तो वो सब Tier 1 रिटेलर में आ रहे थे, इसलिए ये सारा मसला था। तो उसके लॉ में कुछ चीजें रह गई थी, उसको कवर करने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट में ये चीजें लाई गई हैं। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सेल्स टैक्स के सिलसिले में भी, जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में डिसकंटिन्यूएंस के पावर्स पढ़े, सेल्स टैक्स में भी इस किस्म के पावर्स आए। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को स्ट्रिंजेंट किया गया है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने स्पीच में सुना कि हम लोगों को अंदर नहीं करेंगे, हम लोगों को जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन मॉनेटरी पेनल्टी इतनी बढ़ा दी गई है कि आपको अंदाजा होगा यहाँ पे आके कि पेनल्टीज हमने इनकम टैक्स में डिस्कस की और यहाँ पर भी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा 0 रेटिंग आया है फैट फील्ड मिल्क के लिए, ऑल्दो स्पेसिफिक इंडस्ट्री। कुछ रिड्यूस रेट्स हैं जो 8 शेड्यूल में कवर होते हैं, और कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे। Coming to the online marketing space, इसमें ये है कि as per section 3, the sales tax is charged at the rate of 17% on the value of sales tax taxable supplies by a registered person in the course or furtherance of taxable activity carried on by him. ये जनरल चीज है जो पहले भी अवेलेबल है। The provisions of reverse charge is also provided in subsection 7, whereby the tax shall be withheld at the rate specified in the 11th schedule by any person। ये withholding tax का पहले SRO था 660, उसको last but 1 year में 11th schedule में डाला गया। By a person or a class of person being a purchaser of goods or services as withholding tax agent for the purpose of depositing the same in such manner the subject to condition or restriction as the FBR may prescribed in this behalf
through notification in the official gazette. अब ये पावर इस्तेमाल करने की पूरी तरह कोशिश करेगी। पहले 11 शेड्यूल में जो अमेंडमेंट आती थी वो उसमें मसला ये था कि उसके लिए फाइनेंस एक्ट की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ FBI ने पावर ले ली है कि हम मजीद इसका स्कोप एनलार्ज करने के लिए FBI के पास पावर है कि 11 शेड्यूल में वो अमेंडमेंट कर सकता है। अब ऑर्डिनेंस की बात करें तो थ्रू द ऑर्डिनेंस एन अमेंडमेंट इज मेड इन दिस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयरबाय इन द केस ऑफ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ अ थर्ड पार्टी like Daraz Food Panda, the liability to withhold tax on taxable supplies of such party shall be on the operator of such marketplace. For example, McDonald है, उससे आप फूड पांडा के जरिए कोई चीज मंगवाते हैं और वो चीज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है फॉर एनी रीजन, फेडरल सेल्स टैक्स है, ऑल्दो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है इस वक्त तो, लेकिन एग्जांपल के तौर पर थोड़ी देर के लिए हम फिर दराज की एग्जांपल ले लेते हैं कि दराज ने कोई से आपने कोई चीज खरीदी जो वाया दराज आई है, असल सेलर दराज नहीं है, तो उस केस में इस बात का इम्कान था कि विदहोल्डिंग दराज न करे उस सूरत में। तो यहाँ रिवर्स मेथड बनाया गया कि जाहिर है जब मैं अगर कोई कंपनी बाय करेगी दराज के जरिए, ठीक है, तो एक आर्गुमेंट अवेलेबल हो रहा था कि दराज के जरिए चूंकि बाइंग हुई है तो इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स का इशू अराइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दराज को पाबंद किया गया है कि वो आगे विदहोल्डिंग टैक्स के एंगल से बात करें। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि थ्रू दिस ऑर्डिनेंस एन अमेंडमेंट इज मेड इन दिस रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब रिवर्स सिस्टम होता है, whereby in the case of online marketplace facilitating the sale of third party goods like Daraz, the liability to withhold taxes on taxable supplies of such party shall be on the operator of such market. ये दराज वाले डिडक्शन प्रॉपर्ली करेंगे जहां जहां विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं फर्दर कि इफ अ सेलर इज सेलिंग ऑन दराज योगर्ट या कोई भी चीज बेच रहा है या अपने पाउडर या कोई भी चीज बेच रहा है, इन रिटेल पैकिंग sales tax on yogurt is charged at 10%. Daraz will withhold 10% of such sales from sales price of yogurt and will deposit the same with FBR. ये दरमियान में तो आया दराज, और जो बायर है रियल बायर कंपनी भी हो सकती है, रियल बायर कोई और भी हो सकता है। अगर रियल बायर इंडिविजुअल भी है और उसको डिडक्ट नहीं करना तब भी दराज डिडक्ट कर लेगा इस सिचुएशन में जो भी टैक्स उसका बन रहा। सर इसके ऊपर मजीद तफसील हम सोच रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। इनकम टैक्स तो एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर आ चुका है, लेकिन सेल्स टैक्स का एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर भी नहीं आया। इसमें ऑनलाइन इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड in the sales tax act by legislature whereby various business including tier 1 retailers were mandatory to integrate their outlets with Federal Board of Revenue online system for monitoring of sales and purchase. Through the ordinance, a technical amendment is made in charging section 3 whereby FBR is now given power to require any person or a class of person to integrate their invoices issuing machine with the Federal Board of Revenue system for real-time basis reporting of sale in such mode and such manner and from such date as may be prescribed. अब जाहिर है जिन लोगों ने जहाँ POS का मसला हुआ, जहाँ सील हुआ, वहाँ कुछ केसेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में एक आर्गुमेंट ये किया कि चार्जिंग सेक्शन में तो ये चीज़ मौजूद नहीं है और ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट रियलाइज दिस फैक्ट कि जो सोचना था इससे पहले नहीं सोचा जिसको फाइनेंस एक्ट आया, उसके बाद जब ये इश्यूज अराइज हुए तो उन्होंने अकॉर्डिंगली लॉ को चेंज कर दिया। यानी इफेक्टिवली कोर्ट ऑफ लॉ के जो ऑर्डर्स हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए तो एप्लीकेबल रहे, अब एप्लीकेबल नहीं होंगे ड्यू टू चेंज इन लॉ। लेकिन इसके साथ साथ जो मसला आया है वो अब फेडरल बोर्ड रेवेन्यू को पावर भी मिल गए हैं कि वो मोड, मैनर और टाइमिंग ऑफ एप्लीकेबिलिटी वो prescribe कर सकता है। wherever the word prescribe is used means it will be prescribed in
सेल्स टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन के नंबर्स होते हैं, प्रिस्क्राइब के रूल होते हैं और स्पेसिफिक रूल में आता है। तो वी आर फोर्सिंग के रूल्स के सिलसिले में शॉर्टली आएंगे। जब तक रूल नहीं आते उस वक्त तक इसकी एप्लीकेबिलिटी में इश्यूज होंगे, और अगर कोई एक्शन बिफोर द रूल हो रहा है तो ये लीगल पॉइंट उनके फेवर में जाएगा टैक्स पेयर। The discontinuance of gas and electricity connection, new section 14A is introduced, whereby Federal Board of Revenue have been given powers through ST General Order to direct the gas and electricity distribution companies for discontinuance of gas and electricity connection of any of the person who fall in the following category. Any person including tier 1 retailer who fail to register for sales tax. Not only tier 1 retailer, balki any person which FBRC thinks that he is liable to be registered but not registered, उसके सिलसिले में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन फोकस दिया गया है टीयर 1 को, मतलब कि टीयर 1 रिटेलर को ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन that does not mean that it is only applicable for tier 1 retailer. It is applicable to any person which FBRC thinks that he should be liable to be registered but not registered. Notify the tier 1 retailer registered but not integrated with the board computerized system. इसको भी specifically शामिल किया गया है ताकि अब कोई legal issue ना उठाए। However, upon registration or integration of the above person, the FBR shall notify the restoration of gas and electricity connection through sales tax general order. अब ये बहुत बड़ी मुसीबत का practically in the past लोगों को face हुई है कि इस किस्म की चीजें 5 रेटेड सेक्टर में भी थी कि 0 रेटेड सेल्स टैक्स चार्ज होगा उनको जो अप्लाई कर दे और उसको एसटी जनरल ऑर्डर में लाया जाए। अब जाहिर है कोई चीज आ तो जाएगी, इम्कान इस बात का है कि अटैक तो हो जाएगा, और ये अटैक तकरीबन 8,000 लोग ऑलरेडी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और एक इनका अपना ऑर्डर इशू हुआ है एसटी जनरल ऑर्डर कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये कंपलसरीली रजिस्टर्ड है एज ए टीयर 1, और अगर वो टीयर 1 वाले लोग नहीं हैं तो वो कमिश्नर के पास जाएं और उनको एप्लीकेशन दें। उस एप्लीकेशन की अप्रूवल जब हो जाएगी तो वो उस जनरल ऑर्डर से बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने अजम्पशन के ऊपर, सर्टेन आउटसाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने तकरीबन 6-8 हज़ार लोगों की लिस्ट इशू कर दी है ऑलरेडी। लेकिन जाहिर है जहां मसाइल थे और जो लोग रजिस्टर जिनको नहीं होना चाहिए था और उनको रजिस्टर कर लिया गया है तो वो बाहर भी आ सकते हैं अपनी सबमिशन के बाद। लेकिन ये प्रोसेस में मुश्किल हो जाएगी कि कई दिनों के बाद जब वो बाहर आएंगे और फिर जाके वो अप्लाई करेंगे गैस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के कि हमें एफबीआर ने बाहर निकाल दिया है तो आप भी अकॉर्डिंगली हमारी बिजली खोल दें, हमारा गैस खोल दें। लेकिन ज़ाहिर इस प्रोसेस में बिजनेस डैमेजेस होंगे, तो इसलिए कंप्लाइंट होना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन इस पूरी कहानी के नतीजे में आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना काम पिफा के लोगों का और प्रोफेशनल्स का बढ़ेगा फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव, और कितना ज़्यादा कंप्लायंस के ऊपर जोर देना पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने शुरू में एक अल्फाज इस्तेमाल किया था कि जब मैं आज टीवी पे गया तो इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि सैलरीड पर्सन तो देते हैं टैक्स, लेकिन उसके अतराफ में जो लोग होते हैं वो कम देते हैं टैक्स या नहीं देते टैक्स। ना कई लोग फाइलर हैं, कई लोगों के घर जो है ना वो भी रिकॉर्ड पे नहीं है गवर्नमेंट के। और आई हैव हर्ड के लाहौर में ये डेटा बैंक बनना शुरू हो गया है कि किस किस के हैं घर। और एक और काम होमवर्क हो रहा है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर डिटेल अबाउट इट, इसलिए दायरे हमें कुछ चीज़ें मालूम होती हैं कि आइंदा 3 साल में क्या होगा। और मैंने कहा 2 साल पहले मैंने अपनी तरफ से टीवी पे बोला, लेकिन दैट आई कैन टेल यू कि अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं होगी तो बिलीव मी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनी टैक्स की नॉलेज बढ़ाएं। मुख्तलिफ लोग हैं जो टैक्स की ट्रेनिंग देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टैक्स एक्सीलेंस की तरफ या कस्बाती कंपनी की तरफ है, आपको जो मुनासिब लगता है उनसे ट्रेनिंग लें और बी रेडी भी। वो प्रैक्टिकल लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, और हमारे केस में तो सारा मटेरियल का ऑथर मैं खुद होता हूँ। और फिर हमने इंगेज की हुई है
फैकल्टी अलग से, और फिर अगेन मैं हॉट इनकम टैक्स हॉट सेल्स टैक्स के प्रोग्राम में मैं खुद होता हूँ। और अब हम चूंकि लेवीज की भी इम्पोर्टेंस है और इसी तरह से कॉर्पोरेट कल्चर भी आ रहा है, SECP की रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रिंजेंट आ चुकी है और आने वाली है, तो हमने उसके कोर्सेज भी शुरू किए हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम एजुकेशन की तरफ वक्त दें, और इसीलिए हमने हमारे प्रोग्राम को सैटरडेज को रखें कि बहुत सारे लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है या हाफ डेज होते हैं। ये मजीद आपको बता रहा है कि अगर फर्ज कर लें 8,000 रिटेल चेन्स को डाल दिया गया है और 8,000 तो गए हैं उधर, FBR का प्लान है 80,000 मशीनरी का। मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ वो भी, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 130,000 1,30,000 लोग POS में आने चाहिए, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 80,000 बाई जून ले आएंगे। ठीक है, अब 80,000 जब आएंगे, और 80,000 जो इस वक्त प्रॉपरली चीजें रिपोर्ट नहीं कर रहे, और आइंदा वो प्रॉपरली रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू होगा, तो पिफा, ICMAP, ICAP, इन सब का फायदा होगा इस एंगल से कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो किसी शक्ल में बिजनेस का पार्ट है, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड बी रेडी फॉर दैट। फिर इसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करें, एक नई एंट्री डाली गई है 25A में, whereby if a person is required to integrate his business as stipulated under subsection 9A, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, who fails to get himself registered। अच्छा, लॉ में हिमसेल्फ में हर सेल्फ भी शामिल होता है, और कुरान में भी जहाँ जहाँ मर्दों के लिए आयत आई हैं वो मोस्टली औरतों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अल्लाह के कानून में भी यही है और दुनिया के कानून में भी यही है कि हिमसेल्फ कवर्स हर सेल्फ एज वेल, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। एंड इफ इस तरह की चूंकि बुटीक वगैरह औरतें भी चला रही हैं, तो एक अलग कहानी है कि चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए और मसाइल क्या है, लेकिन लॉ उनके ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है। शी कैन नॉट से कि यहाँ हिमसेल्फ लिखा हुआ है इसलिए मैं इसके एम्बिट में नहीं आती। एंड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू इंटीग्रेट इन सच मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अब यहाँ पर ये इनको पेनल्टी जो है एक ऐड की गई है कि जिसमें इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सके। कितनी पेनल्टी लगेगी? सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹50,000 फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट, जो इस वक्त 1 मिलियन था, डायरेक्ट जंप मारता था 1 मिलियन था, अब इन्होंने 50,000 फर्स्ट डिफॉल्ट पे कर दिया, फिर भी नहीं माना नोटिस के बावजूद, पेनल्टी लगने के बावजूद, तो 1 मिलियन लगेगी पेनल्टी, फिर इसके बाद 2 मिलियन, फिर इसके बाद 3 मिलियन। ये डिफॉल्ट है, और हर 15-15 दिन बाद हर नया ऑर्डर पास होगा, यानी 2 महीने तक अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 6 मिलियन एंड 50,000 लग चुकी होगी अगर वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराता, बिकॉज हर जगह 15 डेज का जो है स्पेस दिया गया। अगर ये 4th डिफॉल्ट होगा, इसके बाद सील की जाएगी। प्रीवियसली अभी जो रिसेंटली जो आपने देखा होगा जून में या जुलाई में या अगस्त में जो सील्स हुई थी, और हम जब अगस्त में थे भूरबन में तो हमें इतला मिली थी कि इवन जुलाई अगस्त में बहुत सारी जगहों में चीज़ें हो गई थी। तो लेकिन इसमें ये किया है कि सीलिंग जो है वो आफ्टर 15 डेज ऑफ द 4th डिफॉल्ट, यहाँ टाइमिंग बढ़ाया गया है। प्रीवियसली इट वाज 1 मिलियन एंड डायरेक्टली जंप ऑन टू सीलिंग कि अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता। If the retailer integrates his business with a board computerized system before imposition of a penalty for second default, the penalty for the first default shall be waived by the commissioner. The penalty provided in section in entry 25 for this category is omitted. इसके बाद जीरो रेटिंग के लिए दायरा बहुत कम पार्टिसिपेंट हमारे होंगे जो इस एंट्री से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए जीरो रेटिंग के पर्सपेक्टिव से चीज आई। इसके अलावा एडिबल फ्रूट्स जो हैं, एक्सेप्ट फ्रूट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, edible fruits excluding imported fruits whether fresh, frozen or otherwise, preserved by excluding those bottled or canned। अफगानिस्तान के सिलसिले में ये चीजें रुकनी शुरू हो गई थी, मसला होने लगा था, तो
तो इसलिए, और एक अच्छी चीज हमारे लिए है ब्रदरली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। खतरे की घंटी भी है कि कोई बॉम्बर, सुइसाइड बॉम्बर भी आ सकता है उस एरिया से, लेकिन आपने देखा होगा कि बॉर्डर से बहुत सारे लोग पाकिस्तान फिजिकली आ रहे हैं। और इवन आई हैव सीन अ वीडियो एज वेल कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली ट्रक के नीचे बच्चे बैठ के भी ट्रेवल करते हैं, और विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन उनके बेचारों के पेरेंट्स नहीं है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वो ट्रक के नीचे लटक के आते हुए मैंने वीडियो देखी है। अल्लाह ताला ऐसी चीजों से हमें बचाए। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंज के लिए भी एग्जामिशन पहले जून 30 तक थी, उसको बढ़ा के दिसंबर तक की कर दी गई है। इसके बाद डिसेबल सिरिंज के सिलसिले में, मेटल निडल के सिलसिले में भी दिसंबर, 2 किस्म की हैं इसके अंदर, ये दोनों के लिए दिसंबर की डेट कर दी गई है। इसके अलावा रबर गैस्केट के लिए। इसके अलावा न्यू एंट्री अंडर सेक्शन 2A ऑफ द टेबल 3 is inserted whereby the following raw material imported by registered manufacturer of auto disabled syringe are exemption available to registered manufacturer of auto disabled syringe with a quota determination of IOCO and subject to NOC from Ministry of Health and Regulation. इंपोर्ट ऑफ POS मशीन के सिलसिले में इनकम टैक्स में ऑलरेडी बजट में आ गया था कि 150,000 पर मशीन जो आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, और यहाँ पर इन्होंने इधर भी लाए हैं कि इंपोर्ट ऑफ POS मशीन फॉर इंस्टॉलेशन ऑन रिटेल आउटसेट as are integrated with board computerized system for real-time reporting of sales is amended to include credit and debit card terminals and retail cash register also. अब ज़ाहिर है अगर मैं इश्यूज की बात करूं थोड़ी सी कि क्या ठंडे पेटों ट्रेडर ने इसको ले लिया है, तो ज़ाहिर है आपने रिसेंटली चीज़ें देखी होंगी प्रोटेस्ट के सिलसिले में कि कितने मसाइल हुए हैं इस सिलसिले में, और ट्रेडर ने कहा कि हम सिट इन करेंगे। वो पेपर में रिपोर्ट हुआ, उन्होंने सिट इन किया और फिर इन्होंने जो है वो आके मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो की। और आई विल ट्राई कि एक और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा दूँ। There's some second issue that we see. जवाब देता कि FBI के हवाले के अंदर बैठे हुए जो ये चोर है, इनको पता चले कि यहाँ पे This changes everything we know about Alzheimer's. So if you or a loved one is dealing with cognitive decline or always forgetting things, this discovery could save your life. Top Doctor has uncovered what exactly triggers Alzheimer's through this brain scan. And it has nothing to do with old age, vitamin deficiencies or even genetics. But instead it appears that Alzheimer's is triggered because of this thing in your brain. While most medications can keep the symptoms of Alzheimer's or dementia at bay, they don't actually treat the root cause of the problem. So before you resign yourself to being hooked on medication for life, you have got to see this.
This well-known doctor was forced out of his practice we after he opened unveiled a another billion-dollar computer as secret well he wasn't to supposed see to know. how A clinically you are proven watching simple this. trick you can use starting आपको today कैसी to महसूस potentially होगी? reverse and protect yourself मुझे against थोड़ी गड़बड़ Alzheimer's, नजर आई regardless of your age or वो medical system condition, and it works like taking care. crazy. More than 43,000 people are already doing it, and they have been able to treat their cognitive decline successfully, while also protecting themselves from their age-related memory problems. Remember, this has nothing to do with meds, fad diets, exercise, expensive treatments or surgery. Actually, net Well, is stop everything you're little doing and slow. click the link below to इसलिए watch थोड़ी a सी short setting free में special video we are this switching doctor over our created. The $390 billion big pharma industry doesn't want you to see this video and discover this extraordinary Alzheimer's fighting secret. Watch We it are now grateful before it's to, too late. PIFA और ज़ाहिर है मैं फिर मशकूर हूँ, and I'm thankful to all PIFA team, Vijay Kumar, as well as Hasib, as well as Tayyab, and all the organizers of this program for providing this opportunity to myself. And we are hopeful. और अगर कोई question अगर आपको हो, तो feel free to put on the chat box or any other mode which the organizer would like. Okay, Vijay Kumar, the things are over from my side. I can see the chat box if there is some question. Have a certain attendance request. We hope Ashraf, attendance can is we being invite marked questions from the participants? for CPD credit. There is a question, can PIFA work as a tax practitioner as per the income tax law? Best of my knowledge, no. लेकिन ये कि PIFA वाले इसको clarify नहीं करते। इस पे फिर मजीद आया है कि please share the recorded video that will be done inshallah. There is no question on the chat box so far. Are there any questions? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We do have a question. Over the Ashraf. past year or so, we've seen a flurry of reforms on the economic side from Modi government, and we've spoken about them. Some have moved, some haven't quite moved. For example, the farm bills are stuck. The new labor codes also seem to be stuck for the time being, but many others have moved and they've made a difference already. And we are looking forward to the success of privatization program of PSUs. But the most important strategic reform being attempted now is the reform of India's military forces. Because India's military forces are still structured pretty much on the pre-Second World War basis. And a lot of the institutions and structures and processes which are more than 200 years old, it seems, are now continuing. Now, this is not to say that tradition is bad or legacy is bad, because armies, armed forces, institutions draw their strength from legacy and tradition. But we must change as times change. And a lot of the areas of the armed forces tend to be conservative, more conservative than most other institutions. It's also their strength. But in many areas, they haven't quite kept pace with the times. Now, various governments have tried to reform these, and I will talk about some efforts which have been made in the past. But Modi government, for the past couple of years, particularly after they came into power the second time, have initiated some really important measures, starting with the setting up of an Chief of Defence Staff, CDS office. All right, a lot of people have complaints, a lot of people have questions. They say this is not the perfect institution. Nothing is perfect when it begins. But not doing something is not an option. The only way of not ever making a mistake is not doing anything new. It's only when you do something new that you might make the odd mistake. But you will then learn from that mistake and perfect the system, improve the system. So CDS was the first reform,
And then you've seen all the buzzwords, integrated battle groups, theater commands, etc. That's been going on because Indian armed forces are actually really behind their times, and that has come out quite starkly lately when our armed forces have held joint exercises, say, with their Quad partners. So the Quad partners say, if we exercise with the Indian Navy, we can't exercise at the same time with the Indian Air Force, because the Navy and the Air Force usually would fight together, would work with each other, but they don't talk to each other. I'm oversimplifying it in the sense that they don't work in one electronic or technological environment. So Navy does its own thing, the Air Force does its own thing. If our Quad partners exercise with our Air Force, they can't exercise with the Navy. And this happens to our armed forces also. And we saw some of that, for example, post-Balakot. Post-Balakot, when the Pakistani Air Force came in a large group to challenge Indian Air Force, the army formations on the ground had been alerted to stay alert, but they had not been sufficiently told to be alert about what. If they saw aircraft overhead, were they supposed to fire? Were they supposed to expect hostile aircraft overhead or friendly aircraft overhead? And that also led to the kind of error, terrible error that we had at Srinagar of friendly fire when a helicopter of our own was shot down. So that showed lack of communication between various units, various fighting arms. Now those things have to be fixed, and I can say very happily, and I endorse it entirely, that a lot of this reform is now being carried out. In this direction, one more important step, one most important step, in fact, I would say now has been taken. It was decided earlier, but it's been implemented as of today. So October 1, that today is the last day for Ordnance Factories Board. Tomorrow, October 1, Ordnance Factories Board will cease to exist. Ordnance Factories Board controls 41 different factories. I remember when I used to work in Chandigarh a long time back in the Indian Express building in an industrial area, every day I drove past the Ordnance Cable Factory, right? So they even had a cable factory there. They make shoes, they make parachutes, they make all kinds of things. 41 ordnance factories are there. All these 41 are now being combined into 7 corporations. What is the difference? I will explain to you. But before that, I will also go a little bit into why this reform is so complicated, why this is not a new idea, and why this has been such a challenge. And this reform was waiting for a strong government with a full majority and maybe more than one term to be able to implement or enforce this, because change like this in these very conservative, old, ossified structures is very difficult. Now, armies across the world have been debating these issues. So, if you see the article today by Lieutenant General H.S. Panag, one of our foremost and most forward-looking and open-minded military thinkers that we published today, please see that article. I'll share a link with you. I'll also share a podcast link in the voice of Utsa Kohli, so you can hear that podcast also. He uses सर विजय साहब अभी ज्वाइन करें, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू। There are certain questions coming into the chat box. Actually, from my side, the presentation is over. And if people will just take over shortly. In the meantime, since people are... Assalamu alaikum. Am I audible to the audience? It's written over here. Can we take an admission in Kaswati courses? Yes. We can able to attempt ITP exams. I hope yes, you can. But our program are triggered in a manner कि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और सिर्फ कोर्स हमने ITP के लिहाज से डिजाइन नहीं किया है, लेकिन आप जरूर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। हमारा पहले लेवल 1 है, फिर लेवल
2 है, फिर level 4 है, so far as the tax courses are concerned. And considering a good background of PIPFA, आप directly level 2 में आ सकते हो, level 1 करने की जरूरत नहीं है आपको. Level 2 जो है वो 3, जिसमें अंदर इसके में 8 classes हैं on Saturdays, 3 to 8. और level 4 में 16 classes हैं. इसको तकरीबन about 7 months इसको लगते हैं on Saturdays. इसके अंदर अब जारे ब्राइब का क्वेश्चन है. I don't want to address, वो अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा. I would love not to pay bribe, and alhamdulillah हम वो काम भी नहीं करते. फिर एक specific question regarding चालान है. Naturally, it's not relating to today's topic. Just looking at any other question which I have to address. सर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो हम उनको उनका हैंड रेज करवा लेते हैं ताकि उनका माइक अनम्यूट करके हम उनसे क्वेश्चंस ले लेते हैं. Vijay, you can take over as I have completed because chat box में कोई question भी नहीं. Thank you, Vijay. And Thank you, PIPFA sir, team. Arthur Staff. Thank you so very much for joining us and honoring PIPFA and Karachi branch committee of PIPFA. It was a wonderful, wonderful experience to hear from your years of expertise, the decade of expertise and knowledge that you have. I, on behalf of PIPFA Secretariat, PIPFA Karachi branch committee, PIPFA board of governors and PIPFA members would like to extend a very heartful thanks to you for giving us this opportunity to learn from your experiences, and we hope that in future events you will also cooperate with us. Your as usual cooperation would be available to us in various seminars, and I am really thankful that you gave us a very good news for the members of PIPFA, which was very wonderful to hear about, and motivating our members to practice and learn taxation and increase their career opportunities. Thank you very much for joining us. Okay, Asif Sahab, thank you for your time. We'll end this session here. The video will be available on Facebook page of PIPFA. Anyone who would like to access the video, it'll be available on official PIPFA Facebook Is page. Asif there too? Yeah, Mr. Asif. So we'll end the session here. Again, thanks very much, Mr. Asif and Vijay Saab and the KBC for organizing this beneficial session for our members. Thank you.